ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਗ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਾਸਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚਿੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰੇ, ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਧਰੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜੂਝ ਮਰੇ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਵੇ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੰਗ ਦੇਵੇ, ਸਾਥ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂੜ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਦੇਵੇ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਓ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਭਟਕਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਾਸਲ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਠੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਠੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਡਾਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਠੱਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਧਰਮ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੜਨ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਾ ਸਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਪਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਖਾਈ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਬਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਨੇ ਵੈਸੇ।
सिद्ध गोष्ठ नाम की बाणी विच 74 अंग ने, 74 बंद ने सिद्ध गोष्ठ के, 114 सवाल ने सिद्ध गोष्ठ विच। और वो विचार कर खिलर जाएगी तो मैं अपने मंदिर तक नहीं पहुँच पावांगा। याद रखियो उहदे विच 2 सवाल मैं तुहाडे नाल साझे करन लगा। उहदे च एक सवाल सी भी धन गुरु नानक साहब जी नूं पुछण लगे, सिद्ध पुछण सुन नानका कहण लगे तेरे कोल एक गल पुछनी चाहुंदे सतगुरु सानूं ये दस कौन शक्ति तो इत्थे लिआई, किहड़ी शक्ति है जिहड़ी तू इत्थे जिहदे आसरे तू दुनिया च तुरदा फिरदा है। तेरी छोटी जी उम्र है, गुरु नानक साहब जी ने 3 नामां नाल बुलाया सिद्धा ने। पहला मैं गल बार-बार संकोचनी चाहांगा, पहला बाले नाल, फिर उस तो बाद नानका, फिर उस तो बाद धन नानक तेरी बड़ी कमाई। जो जो उन्होंने समझ लगती कि गुरु नानक साहब जी की क्यों क्यों सत्कार कर दी है। खैर भी पहली गल तो तुहानूं इत्थे कौन लेके आया, सब ने तुहानूं किस चीज़ का आसरा है, तुहानूं किस चीज़ का सहारा है। सतगुरु आख्या सी कह लगे मैनूं तां सिर्फ 2 चीज़ों का सहारा है, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं हराई। एक संगत ते दूजा गुरु की बाणी, पवित्र बाणी। दूजी गल सिद्धा ने यह सवाल किया सी भी तुसीं घर बार क्यों छड्डिया, साडे वांगू डेरा तुसीं नहीं बनाया, तुसीं तां तुरदे फिरदे हो। कदे किधर सुनीदा कदे किधर सुनीदा। साहब कहने कि मैं डेरे बनाउण नहीं आया, असल में तो मैं एक गुरमुखां की भाल में आया। हुण गुरमुख किहड़े सन जिन्हां की भाल में गुरु नानक साहब जी गए? वो गुरमुख सन जिन्हां ने किसी वेले रब्बी सच बोलिया सी, वो भावें सदियां पहलां दा बोलिया होया सच है। गुरु नानक साहब जी ने अपनी पोथी लई ते उस पोथी दे विच अपनी पोथी दे विच भगतां दी बाणी एकत्र कीती। एक छोटी जी बेनती करदे आ, फिर इत्थे गल शुरू करांगा। जदों गुरु नानक साहब जी पहली उदासी उन्हां दी 8 साल दी है, आप भी उपदेश जाने हैं, मैं बहुत बारी अर्ज करना है, आप कुछ ना कुछ अपने प्यारे वास्ते लेके जाते हैं। तो पर हैरानी की गल है गुरु नानक साहब जी भी बहुत लंबे लंबिया यात्रावां कीतियां, बड़े उगे शहरों च गए, बड़े उगे लोगों को मिले। तो गुरु नानक साहब जी ने पूछिए भी तुसीं अपनी माँ वास्ते, तुसीं अपने भैन भरावां, तुसीं अपने चाचे ताया, तुसीं अपने किसी परिवारक मैंबर लई, धीआं पुत्तां लई, अपनी घरवाली लई, अपनी भैन लई, अपने जीजे लई, अपनी मासी लई किसी ने कुछ लिया है? वो कहने नहीं लिया। तो सतगुरु तेन कुछ भी पसंद ना लगा? सब कहने नहीं लगा सी पसंद, ये मैं अपने प्यारे रिश्ते वास्ते लेके भी आया। की लेके आए हो? सब कहने लगे मैं थां थां ते फिर के गुरु के सिक्का मान करी। इस गल ते मैं तुहानूं बेनती करनी चाहुंदा। गुरु नानक साहब कहने लगे मैं अपने पुत लई, मैं अपने सेवक लई शब्द लेके आया, जिहड़ियां बाकी चीज़ां ने वो तां अजकल भर के कदे ना कदे खत्म हो जाणगियां, पर जिहड़े शब्द मैं लेके आया वो अमृतमई बाणी दे वो सजीव काल मनुख की जिंदगी नूं सेध देंदे रहणगे। अज सानूं इस गल ते भरोसा होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए जीवन में। गुरु नानक साहब ने ना अपने पुत्तां लई ना बाकी परिवार लई किसी लई कुछ लियांदा। जदों इकत्तर करके लियांदा तो गुरु के शब्द नूं इकत्तर करके लियांदा ते वो सारी अमृतमई बाणी की पोथी। अक्सर बेनती करदा रहा, इतिहास अज का दिन का उही है तो आप इतिहास बदल नहीं सकते। 974 शब्द गुरु नानक साहब जी के ते 19 रागां विच अंकित ने। वो सारी बाणी ते भगतां दी सारी बाणी सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने आखिरकार लिया के धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह की झोली विच पा दित्ती। जो शब्द पहले महल धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने उचारे कि वो सारी पोथी बना के उन्होंने एक दिन वक्त आया, जो पोथी गुरु अंगद जोग मिली वो अमृतमई बाणी की पोथी धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने बख्शिश कर दी। गुरु अंगद साहब जी वो अमृतमई बाणी की पोथी लैके खडूर साहब आके उन्होंने भी अपने जीवन में 13 साल गुरगद्दी की सेवा निभाई। तो 13 साल गुरगद्दी की सेवा निभाउंदियां उन्होंने 63 श्लोक उचारे, वो भी बाणी में इकट्ठा करते गए। धन गुरु अमरदास जी का वक्त आया, उन्होंने 22 साल गुरगद्दी की सेवा निभाई। 22 साल के दरम्यान उन्होंने गुरु नानक साहब जी वाले वरते हुए
उस 19 रागां विचों 17 राग वरते, तुखारी ते तलंग नहीं वरतिया। ये राग वरत के गुरु अमरदास जी ने 885 शब्दों का खजाना सारे का सारा तैयार कर लिया। याद रखियो 3 पोथियां हो गई, एक गुरु नानक साहब जी वाली, एक गुरु अंगद साहब जी महाराज वाली, एक गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी महाराज वाली। हुण इत्थे आपां रोकण लगे। मैं अक्सर बेनती करना भी गुरु अमरदास जी तक कच्ची बाणी ते सच्ची बाणी का मसला सिख कौम के अगे नहीं आया, पर इस वेले क्यों आया? क्योंकि उस वेले सतगुर की रीस विच कुछ बोलण लग पे सन, सतगुर की रीस विच कुछ मुकाबला कर लग पे सन। उन्हां विचों सब तो पहला सी भाई हंडाल दे 2 पुत। तुहानूं वक्त मिलिया अमृतसर साहब के लागे गुरु का जंडियाला, जंडियाले 2 ने, एक नवां शहर के लागे है, एक अमृतसर साहब के लागे। इनू गुरु का जंडियाला तां कहंदे ने, इत्थे दा भाई हंडाल सी। भाई हंडाल नूं गुरु जी ने एक मंजी भी दित्ती सी, पर इहदे 2 पुत कुराहे पै गए। एक दा नाम है बाल चंद, एक दा नाम है बिजी चंद। ये बिजी चंद वो नहीं जिहड़ा 6वें पातशाह वेले घोड़े लिआउंदा है, ये बाल चंद वो नहीं जिहड़ा बाद विच होया। ये बाल चंद इहदे नां ते लिखी हुई भाई बाले वाली जन्म साखी है, याद रखिए। ये हंडालियां ने लिखवाई सी। जिहड़ी गुरु अंगद साहब ने जन्म साखी लिखवाई सी, उहनूं तहस नहस कर दिता गया सी। वो नहीं साडे हत्थ आई, वो नहीं साडे हत्थ आई। रो विचार करें फिर सही। बाले वाली जन्म साखी विचों जिस दिन तुहाडे सामने सच आया, मेरा नहीं ख्याल भी कोई सिख लहू के अथरू ना रोएगा। मैनू नहीं आस भी कोई सिख उस दिन कुरलाएगा नहीं। जिदन भाई बाले वाली जन्म साखी वाला सच तुहाडे सामने आया, हजे मुश्किल है, हजे इन्नी प्रचार तो सारा कुछ पढ़िया हुआ है, पर साथ ना मिलन करके सारा कुछ कह नहीं पाते। सारी गल फिर सी करें। वो पहली बारी बाले वाली साखी जी मशहूर हुई, तो उदों उन्होंने कोशिश की कर्म चुकन की, तो गुरु अमरदास जी ने आनंद साहब की बाणी में ये वचन आख दिते बई सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुर बाद होर कच्ची बाणी। ये सारा मसला गुरु जी ने सिख के सामने रख दिता। बारी आई चौथे पातशाह। चौथे पातशाह धन गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी की सेवा तो बहुत थोड़ा समा निभाई है, 7 साल सारी निभाई है, पर उहदे दरम्यान उन्होंने बड़ी कमाल की। 30 राग उचारे गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने। 19 राग गुरु नानक साहब जी वाले, 11 राग होर माझ राग गुरु रामदास जी की देन है। ये माझे दियां धुनियां ते उचारिया हुआ राग है। ये आम संगीत की दुनिया च नहीं है, भारतीय संगीत की दुनिया में माझ राग नहीं है, ये गुरमत के विरसे की है माझ राग। विचार में फिर गल कठी करो तो गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने उदो 647 शब्द, 885 शब्द गुरु अमरदास जी ने उचारे सी, 647 शब्द गुरु रामदास जी ने उच्चारण किए। ये सारे का सारा खजाना अपने पुत्र धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज जी को सौंप दिता। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज जी ने सारा खजाना देके ते उन्होंने खुद ने उन्होंने अपनी बाणी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जो सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के 5887 शब्द ने। एक बेनती होता रुकन लगे, एक चेता रखियो बई जदों गुरु नानक साहब का गुरपुरब आउंदा है, वो बेदी बहुत ऊंचा करके मनाउंदे ने, उन्हां करके जग दे विच प्रसिद्ध हो गया। गुरु अंगद साहब जी 63 सन ते उन्हां दा भी काफ़ी है। गुरु अमरदास जी भले सन ते भले अमीर सन, उन्होंने भी गुरपुरब काफ़ी उगा मनाया जाता है। गुरु रामदास जी छोटे सन तो उन्होंने जो शुरुआत है वो गोई दरबार साहब तो है। इस गल करके दरबार साहब सिक्खी का केंद्र रहा है, तो इस गल करके उन्होंने भी उगा हो गया। हम गुरु ग्रंथ साहब ना तो बेदी है, गुरु ग्रंथ साहब ना प्रेम है, गुरु ग्रंथ साहब ना भले है, गुरु ग्रंथ साहब ना सोधी है। ते गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जो प्रकाश दिवस मनाने, हालांकि गुरु नानक साहब भी 70 साल सिखा के गुरु रहे, गुरु अंगद साहब 13 साल, गुरु अमरदास जी 22 साल शरीर की जामे विचरे।
तो मैं बेनती करा प्यार वालियो, पर जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब की गल करने हैं उदों सिख जगत विचों विरले लोग ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पुरब मनाउंदे ने। नहीं, इस दिन सिख नूं कोई बहुती खिच नहीं हुंदी, जद के इहनूं असी गुरु नानक साहिब नूं भी जुगो जुग अटल नहीं कहते, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भी जुगो जुग अटल नहीं कहते, पर गुरु ग्रंथ साहिब नूं जुगो जुग अटल इसे भी कहने इहने सलीब काल गुरु दे साडे कोल रहना, पर असी फिर भी साडी खिच इहदे बारे च नहीं हुंदी। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज के बारे च, उन्होंने समुचे गुरु ग्रंथ साहिब जी के 5887 शब्द ने, उन्होंने सारे 2312 शब्द कल्ले गुरु अर्जन पातशाह दे, उन्होंने 30 राग करते। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी में 15 भगतां, 11 भट्टां, 6 गुरुआं की अज दे मैं गल कर रहा 6 गुरुआं की 3 गुरु के सिखां की अमृतमयी बाणी अंकट है, 35 महापुरखों की बाणी अंकट है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी में। आप गुरु अर्जन पातशाह जी को ही चलिए। जदों गुरु अर्जन पातशाह जी का वक्त आया, उन्होंने को सारा खजाना है। हुण नंबर 1 का कच्ची बाणी से पक्की बाणी का सिलसिला शुरू हो गया सी। नंबर 2 हुण इत्थों बहुत तवज्जो दे के समझना पैना। तो मेरी बेनती हाथ जोड़ के, जदों बाबा पृथ्वी चंद नूं गुरगद्दी ना मिली तो उस वेले उन्हें अपने सौहरे पिंड लाहौर में हेहर पिंड उहदे सौहरे ने, जिथों की उहदी घरवाली बीबी घरनों सी, उन्हें अपने सौहरे पिंड में जाके दरबार साहिब के मुकाबले च दरबार साहिब बनाया। पहली नकल बाबे पृथ्वी चंद ने की। दूजी गल, जदों उन्हें हरेक तरीका अपना लिया, लंगर की माया वो ले गया, मसंद उन्हें अपने बड़े पासे कर लिया, गुरु घर के कीर्तनीय उन्हें अपने बड़े पासे कर लिया, दरबार साहिब भी बना लिया, हर उपराला कर लिया, पर वो कामयाब ना होया। फिर वो अपने पुत मेहरबान नूं एक गल कहना पुत मैं बड़े उपराले किए, पर मैं सिखां दे विच गुरु नहीं बन के मकबूल हो सकिया। हुण मेहरबान पूछता भी पिता जी क्यों? कह लग्या मेरे च एक प्रमुख कमी सी। वो कह लगे कि कहते कमी ये सी भी जेडे पहले 5 गुरु ने वो बाणी उचारते रहे ने, मैनू नहीं बाणी आउंदी, मैनू नहीं कविता आउंदी, मैनू इस बारे कोई ज्ञान नहीं। ते उदों बाबे पृथ्वी चंद ने अपने पुत मेहरबान को गद्दी दे दी। हुण जदों मेहरबान गद्दी ते बैठा, इन्हें फिर कविता बनाई, इन्हें कविता बनाई केसर सिंह शिबर। शिबर घराने का बड़ा योगदान है गुरु घर के। भाई मती दास से भाई सती दास दोवें शिबर ने, इन्हों के परिवार विचों है जिहदा मैं तुहाडे नाल जिक्र कर लगा केसर सिंह शिबर। इन्हें किताब लिखी बंसावली नामा 1778 के नेड़े 79 के नेड़े, गुरु गोबिंद सिंह जी तो 70 साल पिछों कि उस किताब के ने जिक्र किया है, बंसावली नाम से जिक्र किया है मेहरबान पुत्र पृथ्वी का। मैनू नहीं आस भी ये शब्दां की ना समझ लगती हो। मेहरबान पुत्र पृथ्वी का कविश्री करे। पारसी इंडिया जबाना का यह वाकफकार सी। पारसी, हिंदवी, संस्कृति नाल गुरमुखी पढ़े। छोटा जिहा इशारा कर रहे साडे सिख जगत में यह गल बड़ी मशहूर कर दी है भी जी पंजाबी है गुरमुखी है ये गुरु अंगद साहब ने बनाई। बिल्कुल नहीं, माफ करें, जी पंजाबी है ये एक लम्मा विषय मैं गल फिर खिलार बैठागा। सब तो पहला अपभ्रंश भाषा, प्राकृत अपभ्रंश, उस तो बाद में जी है वो कई पड़ावां में लंघदी हुई एक पंजाबी भाषा बनी सी। मुल्तान में यह बहुता प्रभाव पिया सी। मुल्तान में शेख फरीद ने, शेख फरीद की बाणी पंजाबी
तुहानूं वक्त मिलिया। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने गुरमुखी लिपि का इतिहास किताब लिखी, हर सिख नूं पढ़नी चाहिए। और मेरी बेनती अपने बैडरूम च किताबां रखिया करिए, बहुत पढ़ने योग किताब है। तो उन्हें जो उन्होंने जिक्र किया भी जी लिपि है, लिपि की होता है लिखण का ढंग, बोली का मतलब बोले जाने वाले शब्द, बोलण तो बाद में कोई चीज़ लिखी जाती है, जिहड़ी चीज़ बोल में ना आवे वो लिखी नहीं जाती। याद रखियो बहुतात शब्द ने जिहड़े इंग्लिश में ने पर पंजाबी च नहीं, बहुतात शब्द ने जिहड़े पंजाबी च ने इंग्लिश च नहीं, क्योंकि बोले नहीं सी बोलते नहीं लिखे गए। ये जिहड़ी लिपि है इनू एक अखरां दे मुताबक तुहानूं वक्त मिलिया करे तुम बोल के देखो घर जाके, जिहड़ा शब्द एक जगह पर बोलिया जाता है वो सारी लहर उत्थों ही बोली जाती है। कक्का कक्खा गग्गा घग्गा ऊँगा, चच्चा छच्चा जज्जा झज्जा नींगा, जिहड़े मर्जी टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा नाना पप्पा बोलना बोलने जाने वाले सारे शब्द इत्थों ही बोले जाएंगे। पप्पा पप्पा बब्बा पब्बा मम्मा सारे शब्द इत्थों ही बोले जाएंगे। ये लिपि गुरु अंगद साहब ने बनाई सी भाई इवें दे। खैर एक वक्री गल है, गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने कृपा की, ये विचार बनाई कि सानू सारी बाणी का खजाना जिहड़ा वो सामभ लेना चाहिए, क्योंकि मेहरबान पुत्र पृथ्वी का कविश्री करे, पारसी हिंदवी संस्कृति नाल गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री नानक जी का पाई। ते उस तो बाद विच बाबे पृथ्वी चंद के पुत्र तो बाद विच मेहरबान तो बाद विच उहदा पुत्र सी हाजी, ते उन्हें भी बाणी लिखण की कोशिश की, कविता लिखण की कोशिश की। तो पहला महला 6वां उन्हें बाबे पृथ्वी चंद को लिखिया, महला 7वां मेहरबान ने अपने आप ने लिखिया, महला 8वां उहदे पुत्र हाजी ने लिखिया। गल्लां बड़ियां चिट्टे होंदियां ने पर मैं संकोच कर रहा। अज भी याद रखो जे कई गुटकियां च सुखमना आ गया, सुखमना साहब कोई बाणी नहीं है। सुखमना साहब पहली बारी मेहरबान ने बनाया सी, असी अज ख्याल नहीं करते, जदों समा बीत जाता फिर बहुत पछताउने। ये बड़ी चलाकी के नाल सिखां दे गुटकियां विच सुखमना आ रहा है। सुखमना साडा नहीं है, सुखमना बाबे मेहरबान का लिखिया हुआ है। चेते रखियो मैं जिहड़ी गल कर लगा था, इस तरह हाजी ने भी अपने वालों आशा की बात दी 24 पौड़ियां ने, उन्हें 3 पौड़ियां बढ़ा के 27 पौड़ियां कर दी सन। कदे वक्त मिले मैं तुहाडे नाल गल करांगा। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम की किताब एक होर है, कलम दे धनी, वो भी पढ़ने वाली है भी उन्होंने किवें सारा कुछ गुरबाणी के रले पाए। आप हम वापस चलिए। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने वेख लिया भाई शरीरक तौर पर तो गद्दियां बराबर लाने की कोशिश की गई, पर शब्द की जी बराबरता है वो पहली बारी बाबे पृथ्वी चंद के पुत्र ने की। गुरु साहब इस कदर सुकीत होते। नंबर 1। नंबर 2, गुरु साहब का अपना विचार सी भाई वक्खो वक्खरियां पोथियां में किवें रखियां जाणगियां ते इन्हां सारियां नूं एक ग्रंथ बना देना चाहिए। नंबर 3, उस तो अगली गल सी जिहड़ी खास करके विचारन वाली वो ये सी भी सतगुरु जी की एक लंबे समय की वियोत सी, ताही दरबार साहिब की इमारत पहला बनी। दरबार साहिब की इमारत पहला बनी है, याद रखिए ये गल चेते रखने वाली है। 1587 को अमृतसर की नींह रखी गई, 77 1587 को दरबार साहिब की नींह रखी गई। 1601 में दरबार साहिब बन के तैयार हो गया सी। 1601 तो लेके 1604 तक गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लिखा जाने लगा। एक दिवस प्रभ प्रातः काल, दया भरे प्रभ दीन दयाल, यमन उपजी प्रगट्यो जग पंथ, ते कारण कीजे अब ग्रंथ। सतगुरु जी ने यह विचार बनाई। एक दिन अमृत वेले सतगुरु ने विचार बनाई भी गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप तैयार कर लेना चाहिए, ये नकली बाणी का कोई हिस्सा न पै जाए। एक बार फिर दोहरा दिया, बाबे पृथ्वी चंद की औलाद विचों महला 6वां, महला 7वां, महला 8वां उन्होंने लिखे अपने ग्रंथ विच, सिक्खी के विच नहीं लिखे हुए। यही कारण है 6वें पातशाह ने, 7वें पातशाह ने, 8वें पातशाह ने बाणी नहीं उतारी।
उन्होंने बाणी नहीं है, वो कच्ची बाणी का निर्णय करना सौखा हो गया। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज जी ने सारी विचार बनाई। उदों कुछ सिख सन जिहड़े वो सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं सी पता लगता, अज वर्गे साधन नहीं सन। उदों बाबे पिट्ठी चंद दे मेहरबान दे लिखे हुए शब्द भी कुछ पढ़न लग पे सन, क्योंकि शब्द के अखीर च नानक है, समझ नहीं लगती, पता नहीं लगता। एक सिख ने आके गुरु चरणों में बेनती की, सतगुरु जी एक कृपा करें। गुरु चरणों में आके एक सिख बेनती कर लगा। एक सिख बोलियो जोर कर, सतगुरु जी सुन लीजै, पृथ्वियां आदक अपर बहु, सिख कर्म नतीजै, आप बनावत शब्द बहु, निज मत अनुसारी, श्री नानक को नाम शुभ कर देत मझारी। कहने लगे सतगुरु को अपने वालों बराबरता करते हैं गुरु शब्दों की, कितने कोई गड़बड़ ना हो जाए। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने उस वेले भाई गुरदास को आज्ञा करी, करो एकत्र बानी ए करी, ए भगतन की बानी सब मेलो, साची रखो झूठी पेलो, आप बैठ के विचार करिए। और ये गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने कृपा की, उन्होंने अपना बनाया हुआ रामसर। मैं हर बार ये बेनती करना, जदों तुसी हुण दरबार साहिब जाओ, ये रामसर जरूर जाए। कितनी अजीब कहानी है। सिख जगत में सब तो वध सोसाइटियां सुखमनी साहिब के नाम से, सिख जगत में सब तो वधिक पढ़ी जाने वाली बाणी सुखमनी साहिब है। पर सानू ये नहीं पता भी इसे रामसर के कंढे बैठ के गुरु अर्जन पातशाह ने सुखमनी साहिब बताई सी। इस रामसर के कंढे बैठ के, रामसर दरबार साहिब तो बहुत ही दूर नहीं है। एक गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने सोबर बनवाया सी। इतने संघने दरखत सन। लिखन लग्या दो चीज़ों का ख्याल करना पैंदा। नंबर एक, बहुत ही ठंड ना होवे, नंबर दो बहुत ही गर्मी ना होवे। गर्मी नाल हाथ नूं पसीना आउंदा है ते वो जिहड़ा पेपर खराब होंदा है। ते सर्दी दे विच जदों बहुत ज़्यादा सर्दी होवे ते हाथ कंबदा, अखरां की शेप नहीं बनती। इसलिए वो थां इहो जी सी जिथे ना बहुत गर्मी लगती सी ना बहुत सर्दी लगती सी। हुण तां दरख्त रहे नहीं। उत्थे शमियाना ला के बड़ा कीमती गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने भाई बन्नों की ड्यूटी लाई भी तुसी कर्मां घड़नियां ने ते नाल स्याही बनाउणी है। स्याही बनाउण लग्गिया 20 दिन लगदे सी। अज वांगू बाजार तो नहीं सी खरीदी जाती। स्याही बनाउण लगण नूं 20 दिन लगदे सी। विच कालख पा के, चारे बूंद पा के, ते विच लाजवर पा के, ते ओहदे विच सोना पा के, ते ओहदे विच होर कई चीज़ां ऐसियां विच पा के, ते सारा कुछ पा के तांबे के बाटे विच निम दे घोटने नाल घोटिया जांदा सी। ਉਹ सोना तां पाया जाता सी भी कोई घट रोशनी च भी पढ़े कि अखरां की चमक बन जाए। गूंद इस भी पाए जाते सी भी अक स्याही जिहड़ी है वो खिलरे ना, वो फैले ना पेज के उत्ते। ते नाल याद रखो कि निम दे घोटने नाल इस भी घोटिया जाता सी ताकि वो जिहड़ा कागज है वो कदे कीड़ा ना लगे। क्योंकि निम दे पत्ते तो मेरा ख्याल तुहानूं मेरी उम्र वाले सारिਆਂ ਨੂੰ याद होएगा, किताबां च निम दे पत्ते रखिया करते सी भी किते कीड़ा ना लग जाए। ये सारी कुछ विਉਂਤ बना के गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने याद रखो जो कागज है वो 704 सन च पहली बारी चाइना ने बनाया सी। उस तो बाद वो अरबियां को गया। अरबियां तो बाद जो मुसलमान इंडिया गए तो उस वेले इंडिया कागज बनना शुरू होया। तो पहली बारी कागज जो वो कश्मीर में सहारनपुर च बनया सी। कश्मीर का कागज बड़ा कीमती सी। गुरु अर्जन पातशाह जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखने वास्ते कागज मंगाया वो कश्मीर का मंगवाया सी। सारी डिटेल देखनी हो तो प्रोफैसर प्यारा सिंह पदल दी किताबों से मिल जाती है। उन्होंने बड़ी कमाई की है सिख जगत लिए। मैं फिर अपनी गल वाल वापस आवा तो रामसर के कंढे बैठ के भाई गुरदास की ड्यूटी लाई कि तुसी गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखना है। वो हुण स्वरूप लिखते हैं थोड़ा जिहा पन्ने लेके ते उन्होंने विचों सिउण मार के छोटी जी, मैं छोटे उदाहरण नहीं कह रहा, छोटी जी किताब बना लेते थे।
ताकि सारे पन्नियां उत्ते स्याही ना डुल जाए, कोई होर कारण ना बन जाए, लिखिया होया सारा किते बेकार ना चला जाए। थोड़े जे पेजां दी बना ली सन। तुहानूं वक्त मिलिया डॉक्टर जोत सिंह ने करतारपुरी बीड़ के दर्शन ते प्रोफैसर सहब सिंह उन्होंने आद बीड़ के 2 किताबां च जिक्र है कि वो किवें जुझा कहते हैं, उन्होंने जुझ उन्होंने जुझा कहते हैं जिहड़े पेपरां नूं इकट्ठे करके टैंपरेरी सी के ते उहदे च लिखना। हुण भाई गुरदास जी लिखते हैं, गुरु अर्जन पातशाह जी पोथियां तो पानी का उतारा करवाउंदे ने, बार बार जेडे गौड़ी राग च शब्द ने, जिन्होंने बहुत ध्यान सहज पाठ किया होगा पता होगा, गौड़ी राग में जो शब्द ने उन्होंने थले निके निके अंक लिखे हुए, वो सानू भी जो दोबारे चेक करने दिते जाते सन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज वालों। इस 12 के नाल जो श्लोक दर्ज हुए वो भी गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने बड़ी विचार के नाल उन्होंने नाल श्लोक दर्ज किए, क्योंकि श्लोक कदे उचारे हुए सन, पौड़ियां कदे उचारियां हुई सन। यही कारण है सिर्फ 12 के पिछे लिखे हुए शुद्ध या शुद्ध कीते, भई इहनूं दोबारे चेक करो, शुद्ध कीते जिथे लिखा है शब्द। लंबेरा समा ला के गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार हो गया। स्वरूप तैयार होया तो मैं ये बेनती नाल करा, जिन्ना के स्वरूप तैयार होया 1601 तो लेकर 1604 तक गुरु अर्जन पातशाह एक रात भी अपने घर नहीं गए। रब जाने इन्ना प्यार किया सी सतगुरु ने बाणी नाल कि अज के सिख नूं प्यार नहीं है। कहण च गुरेज ना करा, अज अखंड पाठ साहिब रखिया हुंदा है, सिख नूं चेता भी नहीं होता। 35 रब्बी रूहां मेरे घर आईयां होईयां ने, 35 रब्बी रूहां मेरे घर आईयां होईयां ने, जिन्हां दे बोलां च एडी वड्डी ताकत है। अगर वो एक शब्द भी मेरे कन्नी पै गया तो मेरे जीवन की बेड़ी पार हो सकती है। अपनी गल बताइए, आखिर गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार होया तो फिर इनू करीब 15 दिन लगे। 15 अगस्त 1604 को स्वरूप तैयार हो गया। इन 15 दिन लगे, मुड़ के इंडैक्स लिखन लगे, इहदा तस्करा लिखन लगे। तुम पाठ करते हो, ये 2 तरह के इंडैक्स ने गुरु ग्रंथ साहिब जी। कितनी सतगुरु जी ने सियाणप बरती हुई है कि गल की किसी जगह पर कोई रला नहीं हो सकता। पहला तस्कर है जो रागां का 31 रागां का, किहड़ा राग किन्ने पन्ने तो किन्ने पन्ने तक चलता है। फिर उस तो बाद जिन्ने भी गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द ने जिहड़ी पंक्ति तो शुरू होंदे ने, जिवें सुखमनी साहिब की लम्मी बाणी है, उसकी आरंभक पंक्ति लिखी होएगी। सारे गुरु ग्रंथ साहिब के जिन्ने भी शब्द ने, जिन्नियां लम्मियां बाणियां ने, उन्होंने आरंभक पंक्तियां लेके नाल पन्ना नंबर लिखा हुआ है। ये दूजा इंडैक्स है गुरु ग्रंथ साहिब जी। उस तो बाद अगे आता है जपजी साहिब। जपजी साहिब गुरु रामदास जी ने एक गुटका लिखा से, अज भी वो सानू बहुत थावां ते मिलता है। थोड़ी जिगरे नाल पढ़नी पेगी, एवं नहीं पढ़ सकते तुसीं। 2 किताबां बड़ियां आला किस्म दियां ने। एक जीवी सिंह दी, उसकी शब्दावली थोड़ी कठोर है, जिगरा रख के पढ़ना पैंदा है। दूजी डॉक्टर प्यार सिंह की किताब, उन्होंने अकाल तख्त साहिब तो वाला कि शेख दिता गया उनकी किताब बैन हो, इंडिया च नहीं मिलती, पर वो किताबां पढ़ने वालियां ने। मैं बेनती कर रुक चाह कर फिर से मेरा मतलब इस नहीं होता भी तुम किसी तरह ही लाग लग जाए। अपनी गल में चलीए। हूँ जब गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने वो सारा स्वरूप लिखाया, उन्होंने जोड़ा जपजी साहिब है ना, वो गुरु रामदास जी का लिखा हुआ, उन्होंने गुटके तो वो नकल किया होया। बार बार एक किताबों में मिलता सानू लिखा गुरु रामदास जी के जप के नकल का नकल। सारे को सारे सबूत ने। रुक चल उन्हें जो मूल मंत्र गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने लिखा, अगे जपजी साहिब का पाठ भाई गुरदास जी ने लिखे, फिर शुरुआत कर दी।
ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਉਦੋਂ एक साइड ते पेज नंबर लिखा जाता सी, दोनों पे एक साइड ते लिखा जाता सी। उहदे पेज 974 बने। पहले गुरु ग्रंथ साहब जी के जिहड़े टोटली पेज बने 974 बने। और गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप जिहड़ा है वो सतगुरु जी ने दरबार साहिब के अंदर प्रकाशमान किया। राम सर के कंढे वो लिखिया गया। तो जदों लिखिया जाता सी जिन्ने पन्ने हो जाते सी, जिहड़ा अकाल तख्त साहिब के अंदर कोठा साहिब है जिथे अज भी सुख हासिल किया जाता है, गुरु अर्जन पातशाह जी समेत उन्होंने पन्नियां दे पुट्ठे आके आराम करिया करते सन। गुरबाणी दीयां पोथियां, गुरबाणी के पन्ने पुट्टे रखते सन, आप थल्ले आराम करते सन। जब पूरा स्वरूप तैयार हो गया तो उदों ਜਿਹੜੀਆਂ नकली बाणी दीयां पोथियां सन, थोड़ा जिहा मैं जिक्र करना फिर अपनी गल बता जाना। तुहानूं पता लगेगा भी गुरु ग्रंथ साहिब के अखीर में जिहड़े पन्ने छड्डे हुंदे सन उन्हां दे उत्ते नसीहतनामा इतिहासक वो कई जिहड़ियां बाणियां सी ना कच्चियां वो दर्ज कर दिंदे सी। डॉक्टर प्यार सिंह की किताब से बड़ा खुलासा मिल जाएगा किहड़ी वीर के पिछले पासे वाधू बाणियां किवें लिखियां गईयां। जदों वो जिहड़ियां नकली बाणियां गुरु नानक साहिब के नाम नाल मशहूर हो चुकियां सी, जिवें प्राण संगणी, नसीहतनामा, इतिहासक, वो जिहड़ियां सारियां इहो जिहियां पोथियां सन ते गुरबाणी दीयां पोथियां सन। गुरु अर्जन पातशाह ने अपने हत्थी संस्कार करवाइयां। किते यह ना हो जाए गुरु नानक साहिब की बाणी की पोथी वखरी रह जाए तो कल बेदी रह जाए, वो वखरा डेरा बना के बैठना। गुरु अंगद साहिब की बाणी की पोथी किते त्रेन ले जाए तो वह वखरा बना लेन। अज साडे कोल गुरुआं की हथ लिखत विचों कोई भी पोथी साडे कोल नहीं है। गुरु साहिब के वेले के स्वरूप जिन्हों उत्ते दस्तखत होए हुए ने गुरु दे, गुरु जी कदे अपना नाम नहीं सी लिखिया करते, एक ओंकार या मूल मंत्र पूरा लिखते सन। ये गल डॉक्टर गंडा सिंह जी होरां ने हुक्मनामियां ते रहतनामियां विच जिक्र किया होया। ते इवें गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार हो गया। हुण गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने विचार बनाए भी इहदा प्रकाश कौन करे, क्योंकि नवी गल शुरू होनी सी। गुरु अर्जन पातशाह जी भी बैठ के हुक्मनामा ले सकते सी, पर उन्हें इसलिए हुक्मनामा नहीं लिया किते गल कोई ये मशहूर ना कर दे भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद में बैठने वाला गुरु होता है। ये गल मशहूर हुई। फिर दूजी गल सिख नूं किहड़े नूं गुरु चरणों में बिठावां, सोच विचार करके फिर विचार बनी भी जो पहला प्रकाश करता रहा वह बाबा बुढ़ा करता रहा। जदों गुरु अंगद साहिब नूं गुरगद्दी मिली उदों भी पहली अरदास बाबे बुढ़े ने की। जदों गुरु अमरदास जी नूं गुरगद्दी मिली उदों भी अरदास बाबे बुढ़े ने की। जिन्नियां भी अरदासां ने बाबा बुढ़े का परिवार करता रहा ते उस वेले जदों ये विचार बनी भी पहला प्रकाश कौन करे तो गुरु अर्जन पातशाह जी ने उस वेले बाबा बुढ़ा जी की ड्यूटी लाई। हुण राम सर के कंढे तो अमृत वेले स्वरूप लेके आए ते गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज चौर कर रहे हैं। स्वरूप बाबे बुढ़े ने चुकिया ते जदों तुरन की वारी आई अगे गुरु अर्जन पातशाह जी अगे तुरते सन, सिख जगत पिछे तुरदा सी। बाबा बुढ़ा जी खलो गए। गुरु अर्जन पातशाह जी कहने लगे बाबा जी तुरो। कहने पातशाह जी नवी रीत अगे गुरु तुरदा है, तुसीं तुरोगे तो मैं तां ही तुहाडे पिछे आवांगा। सब कहते नवी रीत नहीं हो बाबा जी, ये पुरानी ही रीत है। अज गुरु तुहाडे शीश उत्ते है, गुरु तुहाडे सिर उत्ते है ते तुसीं अगे गुरु नूं लैके तुरोगे तां ही असीं पिछे तुरांगे। अज तुसीं अगे चलो बाबा जी, जिहड़ा तेरे सिर ते चुकिया होया गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप ये मेरा भी गुरु है
मैं भी इन्हू गुरु मानदा है, अगे तुरोगे तो मैं तां पिछे तुरांगा। गुरु क्या सिखा दुनिया च इको एक ग्रंथ है जिहदे लिखण वाले ने भी उन्हूं मत्था टेकिया। कृष्ण ने कदे गीता नूं मत्था नहीं टेकिया, ब्रह्मा ने कदे वेदां नूं मत्था नहीं टेकिया, हजरत ईसा ने कदे बाइबल नूं मत्था नहीं टेकिया, हजरत मोहम्मद साहब ने मूसा ने कदे कुरान मजीद नूं मत्था नहीं टेकिया, महात्मा बुद्ध ने कदे धम्मपद नूं मत्था नहीं टेकिया। जिन्ने भी दुनिया के धार्मिक ग्रंथ ने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं गुरुआं ने अपने वेले आप मत्था टेके। ओम सैन सब तहां बराजे, सारे धरती पे बैठ के गुरु ग्रंथ मंजी पर साजे। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं मंजी के उत्ते सुशोभित किया गया। पालकी बहुत चिर मगरों आई है। पालकी का मतलब होंदा सी लैके जाना। जदों गुरु जी नूं एक थां तो दूजी थां लैके जाते सी उदों पालकी च लैके जाते सी। जिहड़ा प्रकाश करने लई पालकी नहीं सी वरती जाती। खैर ते उदों गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज का प्रकाश किया कि बाबा बुढ़ा जी बचन होए। बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ ले आवाज सुने सब पंथ, अदब सन ग्रंथ तब खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। मैं निक्की जी गल कह के जाना, मैनू आस है ये पंक्तियां तुहानूं सारिआं नूं चेते होणगीआं, हर सिख नूं चेते होणगीआं। संतां के कारज आप खलोया, लगता नहीं शक होवे किसी ना चेते हो। ये पंक्ति दरबार साहिब दे विच पहली बारी हुक्मनामा आया। गुरु के सिखा उस वेले तेरे हिरदे नूं धू नहीं पैंदी जदों तू बामण नूं जाके हथ दिखाउणा मेरे कारज ला सकदा। तैनूं यह भी नहीं पता लग्या भी गुरु ग्रंथ साहिब जदों पहली बारी बोलिया सी उहने गल ये कही सी भाई गुरु के सिखा ने संतां दे कारज विच खलोण वास्ते रब भी शामिल हो जाता है। किते भरोसा तो बना लीए जेड़े गुरु का हुक्मनामा ही पहला ये होवे भी मैं तेरे कारज रास कर दियांगा। वो सिख अपने कारज के रास करने वास्ते कभी मुंदरियां पाई फिरदा, कभी खमनियां बनी फिरदा। उन्होंने नहीं यकीन गुरु के शब्द उत्ते। लोड़ है जी अज के दिन प्रकाश दिवस मना रहे हैं, गुरु के इन्हां बचनों से भरोसा कर लीए, गुरु के इन्हां अमोलक बचनों से भरोसा कर लीए। संत निहाल सिंह का लिखा एक बोल में कह के अगे गल तोड़नी। संत निहाल कहते ने, निहाल सिंह जी कहते ने, उन्होंने बड़िया प्यारी गल्लां लिखियां ने। कहते ने मैनूं गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे उत्ते पातशाह जी महाराज उत्ते इहो जिहा भरोसा है। कहूँ को भरोसो जमीन को जमाने विच, कहूँ को भरोसो जोड़ चाकरी जहाज पे, कहूँ को भरोसो पातशाह पातशाह मीत, कहूँ को भरोसो कुटुंबी करे काज पे। किसी को शाह पातशाह का मान है, किसी को यह मान है मेरे बच्चों ने मेरे काम चुक लिया। कहूँ को भरोसो देवबानी और पारसी को, कहूँ को भरोसो संत गिरी की मजाल पे, कहूँ को भरोसो चोर चातरी तलाखी चौक, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। गुरु क्या सिखा जितन जी भी बाणी पढ़ ली वो गुरु का बन जाएगा, गुरु चरणों में जुड़ जाएगा। भरोसा करने की लोड़ है, असी गुरु ते यकीन बनाइए, गुरु ते एक भरोसा बन जाए। शाम का वक्त आया, दूरों पारों सिख संतां ने दर्शन किए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के। शाम का वक्त आया, बचन पूछा क्योंकि अगे मर्यादा नहीं सी। सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में रात का की विचार है। सब ने फिर कृपा की, उदो बचन बख्शे कहने लगे सिखो एक नवा पलंगा बनवा लिया होया ते ओ सुखासन वाले कमरे चला गए। सतगुरु उत्ते बड़ा छोटा जिहा कमरा है जी, उत्ते पलंगा लग गया तो फिर तुहाडे आसन की थां तुहाडा पलंगा तो उत्ते फिर नहीं लग सकेगा जो पलंगा लाउणा। सब कहण लगे हुण इन्हां दे पलंगा लगेगा, मेरा नहीं लगेगा।
ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਨੂੰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तरण गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो पर पन मथरा कछ भेद नहीं। गुरु अर्जन प्रतख हार, जिहड़ा प्रतख हार है वो बाणी दे कोल थल्ले सौण लगा है। प्रतख हार बाणी दे कोल थल्ले सौण लगा है। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज उन्हां दी अज भी कोठा साहिब विच विछाई जांदी चादर जिहड़ी अज भी स्पष्ट करती है गुरु अर्जन पातशाह जी थल्ले वो थल्ले आराम किया ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन उत्थे किया। उस तो बाद विच ये लगातार बीड़ का प्रकाश दरबार साहिब होंदा रहा लंबेरा समा। ते उस तो बाद विच ये जिहड़ी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप है वो याद रखियो जे 1631 तक दरबार साहिब प्रकाश होया। एक बारी बीबी बीरो के विआह के बाहर गया सी। मैं ये पक्ष अज छड्डण लगा, कदे फिर वक्त मिले तुहाडे नाल फिर साझा करांगा। मैं एक छोटा जिहा पक्ष तुहाडे नाल होर साझा करांगा। उहनूं क्या करके बीड़ा बहुत लंबे समय तो बनदियां रहियां। ये पन्ने वक्खो वक्खरे हुंदे ने, कदे फिर वक्त मिले फिर तुहाडे नाल साझा पावांगा। 1311 पन्नियां की बीड़ भी है, 1313 पन्नियां की बीड़ भी है, 1100 पन्नियां की बीड़ भी है, 1800 पन्नियां की बीड़ भी है। दरबार साहिब के उत्ते जिहड़ी बड़ा महाराज का स्वरूप प्रकाश होया उहदे 1527 पन्ने ने। वो ज्ञानी प्रताप सिंह होरां दी लिखी हुई है। वो वक्खो वक्खरे पन्ने रहे ने। जिहड़े 1430 पन्ने ने ये करीब करीब कह लो कि तुसीं 1865 तो बाद में गोरिया ने विलियम सर ने वो पहली बारी बाइबल छापण वास्ते इंडिया च प्रैस आई सी। पहली बारी गोरे लेके गए सी। गोरिया का राज जिहड़ा वो करीब 1850 के पूरा 49 के पूरा हो गया सी। सारे इंडिया के उत्ते पंजाब के उत्ते भी हो गया सी। फिर इन्हां ने पहली बारी प्रैस लाई सी ते उस तो बाद विच लाहौर विच प्रैस लगी सी। उहदा नाम सी कोहिनूर यंत्रालय। वो प्रैस सी लाला हरसुख राय ते उस प्रैस के वास्ते वो हरसुख राय दरबार साहिब आया सी कि उन्हें बेनती की सी कि मैनूं हुक्म दिओ कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप छापा। फिर उस तो बाद में जिहड़ी बीड़ है 1430 पन्ने वाली ये उदों तो साडे कोल है। 1865 तो बाद में पहला बीड़ के कदे एक पन्ने नहीं सी हुंदे। सारियां बीड़ां दे वक्खो वक्खरे हुंदे सी। लिखण लगियां कईयां दा हत्थ मोटा हुंदा सी, कईयां दा पतला हुंदा सी। इस गल करके अगे पिछे हो जांदी सी। बीड़ का पहला उतारा होया सी भाई बन्नो दे वेले। भाई बन्नो ने पहला उतारा किया सी। वो अजकल बीड़ जिहड़ी है वो कानपुर च पई है। पहला वो मांगट लेके गए सी जदों 1947 का भाणा वरतिया ते फिर वो बीड़ जिहड़ी है वो कानपुर आ गई। एक लंबा समय तुहाडे कोल वक्त मिले कि न्यूयॉर्क दे विच मनोज सिंह मार्को उन्हें बड़ा बड़ा काम किया। उन्हें वीडियोग्राफी करा के सारियां बीड़ां दा खजाना इत्थे सामभिया पिया। वक्त मिले तो जरूर देखना चाहिए। मैं जी गल कर लगा सब प्यार वालिओ गुरबाणी नूं जिन्हां ने भी सोचिया विचारिया मानिया अपने जीवन में उन्होंने इस गल ते पहरा दिता है भाई सिख दे कोल जिहड़ा बाणी दा खजाना है ये किसी होर कोल नहीं हो सकता। अज बहुत बड़ी लोड़ है। इस धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश दिवस मनाउंदे आ। मैं कालफ ने एक बारी बाणी की विचार सुनी ते सदा दी गुरु का बन गया। उन्हें जीवन के आखिरी पल में भी जपजी साहिब का पाठ किया सी भी मैनू कुछ नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं चाहिए, मैनू थोड़ा जिहा वक्त दे दिओ। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने सिख पंथ विश्वकोश विखे का जिक्र किया होया। आओ प्यार वालिओ इस प्यो दादे के खजाने को खोल के देखिए, आप पढ़िए, विचारिए कि अज पहला प्रकाश दिवस आप मना रहे हैं। समुची मानवता इस गल की लख लख बधाई होवे। गुरु चरणों में जुड़ के बाणी जीवन का अंग बनाइए। एक भरोसा बना लीए बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु सारी। इन्नी बेनतियां कबूल भुला ना छाड़ते हुए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।